Richa ma'am, hello. Yes, ma'am. I think we'll start. Okay. Till the time participants will join, we'll start. Okay. So, a very good afternoon to all present over here on this e-platform. I, Dr. Richa Singh, feel privileged to welcome you all on behalf of KLE Society Science and Commerce College. Today, we have gathered here for attending the third day of FDP organized by IQAC and Training Cell of our college based on empowering faculty in personal and professional skills. Today's topic is Systematic Investment Plan, that is SIP, which is a monthly investment in mutual funds which helps build your wealth to attain your life goals. It is an investment strategy wherein an investor needs to invest the same amount of money in a particular mutual fund at every stipulated time period. Now, without taking much time, I would call Assistant Professor Neha Pandhare for introduction our guest speaker, Mr. Jay Pal Shetkar. Neha ma'am. Thank you. Thank you, Richa ma'am. A very good afternoon, everyone. This is Assistant Professor Neha. A very good afternoon, one and all present here. It's my prime privilege to introduce Mr. Jay Palchetkar for our today's session under the 3 days National Faculty Development Program. Mr. Jay is a Bachelor in Accountancy and Finance as well as MBA. He is also qualified and certified financial planner, USA, with proven experience for more than 12 years in financial planning. Sir has also recognized National Stock Exchange Certified Professional, National Insurance Academy Registered Professional, as well as an IRDA Certified Professional. Mr. Jaypal Shetkar has given his outstanding results as a certified financial planner to numerous investors in all over India. Sir has been conducting a number of training sessions for Sher Khan, Angel Broking, and Total Securities at Delhi, Ahmedabad, Pune, and Mumbai. Mr. Jay has also been interviewed by DD National. For his valuable contribution, he has been awarded with the Artha Shaksharta Pracharak Award. A warm welcome to you, sir, to this systematic investment plan session organized by the KLE's Colombolis FDP virtual platform. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you, Richa ma'am. Yes, yes, sir. And thank you other faculty. Sorry, I missed the name. Thank you very much, ma'am, and thank you, Okay. Swapnali ma'am. Thank you, Okay, Neha ma'am. yeah, Now we Neha are ma'am. going Thank to you. start our Thank you. session. Dear participants, kindly post your questions in the chat box during this session. We will take up the same during question and answer session, and at the end of the session, feedback links will be shared which contain today's session feedback as well as 3 days FTP feedback in the chat box. After giving your valuable feedback, you received your certificate. So now I request our today's guest speaker, Mr. Jayapal Shetkar, to take over and educate us about SIP. Jay sir? Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Richa ma'am. Okay. Okay. Present. Should I start the presenting? Okay. Yes, Yes, sir. you can start. Yeah. Okay. Fine. Thank you, Swapnali ma'am. Okay. थैंक यू रिचा मैम. ऑलराइट, चलिए फिर शुरुआत करते हैं. Yes, sir, sure. या ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, फाइन Yes, sir. फाइन It is फाइन visible. फाइन. तो ठीक है, देखिए मैं आज जो सेशन होने वाला है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में. एज बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मैम ने दिया. थैंक यू रिचा मैम, स्नेहा मैम एंड स्वप्नाली मैम. आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ये मेरा कंपनी है. आई एम ओनर ऑफ द कंपनी. वी आर करंटली होल्डिंग 600 प्लस फैमिलीज इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड इंश्योरेंस प्लानिंग करंटली. तो कुछ एक्सपीरियंस से आया है, कुछ चीजें हमने सीखी है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ. ओके, द सेशन, थोड़ा सा सेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. लेट्स की फॉरवर्ड, मेरे इंट्रोडक्शन की आपको जरूरत नहीं है. ओके, तो हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन सेशन की तरफ बढ़ते हैं.
देखिए ऑनलाइन सेशन में अगर बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस लाना है तो कुछ तो चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो ऑडियो और वीडियो ऑफ रखिए जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। प्लीज कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। तो हम लोग कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपके पास हम लोग ये इंटरेक्टिव सेशन लेने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर। एक ईच सेशन होने के बाद, एक टॉपिक होने के बाद में थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। उस पे पेपर और पेन रेडी रखिए, शायद आपको एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, इस यहाँ से कुछ इनपुट आप मिल जाए आपको। तो इट विल बी अ फैंटास्टिक थिंग फॉर योर लाइफ और आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट माई वॉइस इज क्रैकिंग, अभी सब मैडम के हाथ में है, पर अगर आप लीव करके मीटिंग आप वापस एंटर कर सकते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू दैट आफ्टर इस सेशन हम लोग बात करेंगे, ऑल द फैकल्टीज ओवर हियर। मैं समझता हूँ हम लोग सब स्टूडेंट ही है। ओके, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। मे बी आई नो 5% मोर देन यू। ओके, बट हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो अब मुझे भी सीखने मिलेगा और आपको भी सीखने मिलेगा। आपके एक्सपीरियंस से मैं भी सीखूंगा। ओके, एंड द लैंग्वेज विल बी इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। क्योंकि देखिए कैसा है, मुझे लगता है मातृभाषा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मातृभाषा में अच्छा सीखते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मराठी में बात करेंगे। इवन एनीबडी डजंट नो, क्या समझ में नहीं आता है तो प्लीज एक क्वेश्चन या आप चैट में डाल दीजिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो नाउ सेशन अगर स्टॉप होता है बीच में तो हम लोग वापस वही लिंक पे मिल सकते हैं। एजेंडा क्या है आज का? लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा। सिंस इट इज अ ऑनलाइन सेशन, लेट्स हैव अ एजेंडा फर्स्ट। पहले तो हम लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी होने दो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होने दो, LIC का प्लान होने दो, यूलिप होने दो, PPF होने दो, FDs होने दो, पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। दूसरी बात है म्यूचुअल फंड्स क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, उसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। और आपको मैं 3 माइंड ब्लोइंग इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल दूंगा वॉरेन बफेट से। सो वॉरेन बफेट के बारे में हम लोग जानेंगे, आपको पता होगा उनके बारे में, पर उनके एक माइंड ब्लोइंग प्रिंसिपल्स है 3 जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो क्यों इन्वेस्ट करना है, व्हाई टू इन्वेस्ट। ओके, इज एनीबडी कैन टेल मी कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? इफ यू कैन टेल मी, एनीबडी, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? आप To कमेंट। increase, yes, sir, to increase our wealth as well as to secure our future as well. Okay, to increase our wealth and secure our future. Anybody else want to add up? Future security and tax benefit might be the reason. टैक्स बेनिफिट करने के लिए और फ्यूचर बेनिफिट के लिए, और कुछ लगता है? फ्यूचर सिक्योर करना है, ये तो पक्का है सबको, फ्यूचर सिक्योर करना है। क्यों करना है देखते हैं, चलो। एनीबडी एल्स वांट टू ऐड द, क्या ऐड अप करना है किसी को और कुछ बताना है? To serve our wealth in a good and proper manner, so Okay. we should invest. ओके, सो बेसिकली वी शुड इन्वेस्ट टू प्रॉपरली मैनर्ड में अपने को प्लानिंग करने के लिए, इसलिए आपको Exactly. इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ओके, सो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट। सिर्फ सिक्योर करना है, फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, क्यों करना है? द रीजन इज इन्फ्लेशन। हमें इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप समझिए, आज अगर 100 रुपए का कोई चीज है और वो अगले साल भी 100 रुपए का ही रहने वाला है, तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो कैश आप जो भी इनकम किया है वो आप अपने कपबोर्ड में रख दीजिए, और वो कपबोर्ड से आप अगले साल निकालिए और वो चीज आप ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब, जो 100 रुपए की चीज है वो 100 रुपया ही नेक्स्ट ईयर रहेगी, तो अपने को इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिक्योर फ्यूचर करना मतलब क्या? तो फ्यूचर के इन्फ्लेशन को बीट करना। क्योंकि हमारे बच्चों की जो एजुकेशन फीस है वो बढ़ रही है, हमारा जो रिटायरमेंट का कॉर्पस का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इन्फ्लेशन है। द बिगेस्ट हर्डर इन आवर फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट इज अ इन्फ्लेशन। सो हाउ मच इज अ इन्फ्लेशन? सो एज पर RBI, ये डेटा मैंने RBI ब्लूमबर्ग से लिया है। RBI estimates WPI is a wholesale price index, what is called a inflation. तो wholesale price index inflation has grown up by 7% in last 30 years. तो 30 साल में लास्ट 6.8% का दोस्तों इन्फ्लेशन आया है। सो इफ आई से 6.8%, और मैं अगर उसको ऐड करूं, तो जो 1 लाख रुपया 30 साल पहले का वैल्यू था 1990 में, 1 लाख रुपया जिसके पास था, अगर वो कपबोर्ड में रख देगा
तो आज का वैल्यू उसका सिर्फ 13,000 रुपीज है। तो अगर मैं 8% से भी इन्फ्लेशन लगाऊं तो 13,000 रुपए का वैल्यूएशन हो गया। तो ये इस तरह से है कि 1990 में अगर मम्मी पापा बोलते थे आपको 10 साल पहले कि मैं तेरे को आज 1,000 रुपया दूं कि 10 साल बाद तेरे को 1,500 रुपया दूं, आप क्या लेंगे? तो आप डेफिनेटली लेंगे कि पापा मेरे को आज 1,000 रुपया दे दो। क्यों दे दो? बिकॉज आपको पता है 10 साल बाद 1,500 का वैल्यू उतना नहीं रहेगा। सो द सिक्योरिंग फ्यूचर मीन्स व्हाट? बीटिंग इन्फ्लेशन, दैट इज होल आइडिया इज। और उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन एक्चुअल में है। ये तो हो गया एवरेज इन्फ्लेशन, ओके। तो गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9.2% से इन्फ्लेशन बढ़ा है, पेट्रोल में देखेंगे तो 8.6% पे बढ़ा है, डीजल में 12% से इन्फ्लेशन बढ़ा है, मिल्क में 9% से इन्फ्लेशन बढ़ा है। सो इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर अस। नाउ दिस इन्फ्लेशन थिंग इज ऑल्सो वर्किंग ऑन आर जो गोल है हमारे। जैसे यहाँ पे सब लोग जो होंगे वो मेरे ख्याल से 30+ होंगे। तो आप 30+ में क्या है, आपके पास चिल्ड्रन है, राइट? चिल्ड्रन का एजुकेशन हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गया, चिल्ड्रन का मैरिज हो गया। दिस कॉस्ट आर हाउ मच? अभी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का बात करेंगे तो पहले 15 तक कितना था? 25,000 था। वो अभी बढ़ बढ़ के 40,000 तक पहुंच गया आज की डेट में। सो एवरेज खर्चा कितना है घर का? हाउस होल्ड इज 30 to 40,000 राइट नाउ, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो आगे चल के और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो पहले के जमाने में एजुकेशन MBA 3 लाख रुपए में होता था, आज 15 लाख रुपए में होता है। तो ये भी खर्चा बढ़ रहा है, मैरिज कॉस्ट बढ़ रहा है। किसकी वजह से? what do you mean by securing a future is nothing but you have to beat inflation. That is what is securing a future means. I hope I am clear about this. Now अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है अपने पास? लाइफस्टाइल। अभी हमारा जो इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रहा है, वो तो है ही। चप्पल पहनना है हमें, पहला जरूरत क्या था? रोटी कपड़ा मकान, बराबर है। नाउ जरूरत क्या हो गया? रोटी कपड़ा मकान, वाईफाई, मोबाइल, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, फॉरेन हॉलीडेज। सो द लाइफस्टाइल। अभी पहले क्या प्रॉब्लम था? जो अलग प्रॉब्लम थे, लोगों का चप्पल ही नहीं था। आज अपने पास चप्पल है तो 5-5 चप्पल है, बच्चों के पास 10-10 चप्पल है, और अभी उसमें स्नीकर भी आ गया है। तो बहुत सारी चीजें बदल रही है। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, हाई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे हम लोग जा रहे हैं। पहले 10 रुपए का चाय पीते थे, फिर बाद में मैकडोनल्ड्स में 100 रुपए के लिए बैठने लगे। आज किधर जाते? बरिस्ता जाते, अच्छे अच्छे होटल में जाते, वही खर्चा 2-3 हजार 4 हजार हो गया। सो हमारा लाइफस्टाइल भी दोस्तों बदल रहा है, राइट? नाउ ड्रीम बदल गया, ड्रीम बड़ा हो गया। बिग हाउस लेना है, बिग कार चाहिए, फॉरेन हॉलीडे चाहिए, सेकेंड होम चाहिए, ये सब करना है, प्लस इन्फ्लेशन इस पे एड अप है। तो वही बात है दोस्तों कि अगर हमारे गोल्स बदल रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन है, तो उसको बीट कैसे करेंगे? तो अपने को इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा वो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला करना पड़ेगा, राइट? मतलब अगर ये इन्फ्लेशन को बीट करने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे ये बिग गोल्स कैसे पूरे होंगे? तो सबसे पहली बात है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। सो व्हाट इज द इन्फ्लेशन? सो इन्फ्लेशन इज इफ आई टेक अराउंड 6% का अभी WPI है फिलहाल, 6% का WPI पकड़ू तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% के ऊपर रिटर्न देने वाला होना चाहिए ईयरली। सो क्या करना है फिर? तो ये प्रॉब्लम्स तो मैंने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के बता दिए। सो इफ इन्वेस्टमेंट गिव्स लेसर रिटर्न देन इन्फ्लेशन, विल इट हेल्प मी? मतलब सिंपल बात है, आज मैं 100 रुपया बाजू में रखूं और मुझे कुछ चीज लेनी है, तो मुझे पता है कि वो 106 रुपए की अगले साल होनी है। तो वो चीज अगर लेने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट 106 से ज्यादा होनी चाहिए। सो इफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर गिविंग लेसर रिटर्न देन इन्फ्लेशन, विल इट हेल्प मी? सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर रही है। ओके, सो बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आज की डेट में जो आज चल रहा है वो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड्स। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में आज बात करने वाले हैं। गोल्ड या बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, कभी रियल एस्टेट के बारे में टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, पर आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। लेट्स कीप टॉपिक को रहते हैं। तो इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए? तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड। क्यों म्यूचुअल फंड?
तो म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो कोई मुझे बताएगा म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? एनीबडी इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? यू कैन जस्ट, हाँ, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Sir, actually, it will be advantageous to us also, as well as towards society. Somewhere we are contributing because that Right. fund is going to be utilized by the government and all. Yes. Same way we in the longer period, and it's not directly affected, like any kind of shares and all. This fund is a little bit secured as per my concern, and in future we will get definitely Better returns. Yes, Yes, very that nice. is my comment. Okay, great. Thank you, ma'am. Anybody else wants to share? म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? Why to invest in mutual funds? चलो और एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्वीक कर रहा हूँ कि डायरेक्ट शेयर्स तो मैं ले सकता हूँ, आई कैन टेक शेयर्स डायरेक्टली, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? शेयर्स भी तो ले सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कोई शेयर्स तो मैं बाय कर सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे व्हाई टू टेक म्यूचुअल फंड्स? सर डायरेक्ट शेयर्स लेने में कभी कभी बहुत बार रिस्क होता है, इट्स अ बेयरिंग ऑफ रिस्क. यस, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम इनडायरेक्ट लेते हैं, मतलब वी आर नॉट डायरेक्टली बेयरिंग द रिस्क. बेयरिंग द Indirectly it is there, but not directly. It won't be that much adversely affect on our एडवर्सली अफेक्ट investment. नहीं होगा, ठीक है, ओके, देखते हैं. थैंक यू मैम. ओके, गुड. एनीबडी एल्स वांट टू ऐड अप? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. जगो, देखिए पहले बात तो ये समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या करता है. अभी हमने डेफिनेशन बहुत सारी बार पढ़ी है, इट्स अ पूल ऑफ, इट्स अ फंड विच पूल द मनी फ्रॉम पीपल, और बट डेफिनेशन से हमें प्रैक्टिकली फायदा नहीं होगा. तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये समझना चाहिए अपने को. तो पहली बात है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है. ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे समझिए एग्जांपल लीजिए एसी और एयर कंडीशन बिगड़ गया, तो आप क्या करेंगे? एक तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के खुद रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनल को बुलाइए, वो 200 रुपया लेगा और वो रिपेयर करके जाएगा. अभी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के रिपेयर कर रहे हैं और कल जाके शॉक लग गया आपको, तो वो कितने को पड़ेगा? तो सेम वे शेयर मार्केट में लोगों का होता है. शेयर मार्केट में लोग खुद इन्वेस्ट करने को जाते हैं, ट्रेडिंग करने को जाते हैं, और फिर उनको शॉक लगता है मार्केट का, क्योंकि उनको पता नहीं है ये काम कैसे करता है. तो ये बहुत प्रोफेशनल काम है टू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनीज. इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, तो म्यूचुअल फंड के पास मिनिमम, मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कम से कम 37 रिसर्च एनालिस्ट होते हैं. अब ये रिसर्च एनालिस्ट जो है, उन्होंने वो सर्टिफिकेशंस ही फिनेंस में किए हुए प्रोफेशनल है, जो हर रोज 24 आवर्स अपने जॉब का किसको देते हैं? रिसर्च को देते हैं, और डेली कंपनी रिपोर्ट बनाते हैं. और आप सोचिए, अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप खुद कंपनी रिपोर्ट डेली बना सकते हैं वो कंपनी का? इज इट पॉसिबल? क्या कंपनी का रिपोर्ट आपको डेली मिल सकता है? नहीं मिल सकता. पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करता है कंपनीज में, इसकी वजह से क्या होता है, वो डेली कंपनी रिपोर्ट लेता है. तीसरी बात क्या है? कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ 100 years. मतलब क्या? अगर 37 रिसर्च एनालिस्ट है और इसके ऊपर होता है फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर और रिसर्च एनालिस्ट मिला के उनके पास कलेक्टिव एक्सपीरियंस 100+ years का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूचुअल फंड बहुत सेफ ऑप्शन हो जाता है स्टॉक मार्केट जैसे इन्वेस्टमेंट में, मार्केट कंपनीज में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. चौथी बात है टेक्निकल प्रोसेस है. मतलब क्या है कि ये सब रिसर्च जो है दोस्तों, ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल काम है. आप 12 घंटा आपको एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाना है, तो उनका कंपनी सिलेक्शन करने के लिए भी, अभी आपको एग्जांपल दूं तो some mutual fund like HDFC or some mutual fund take around 8 months, 7 months, 6 months to select one company. क्या हम उतना रिसर्च कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो बोलने का मतलब, स्टॉक मार्केट में अगर अपने को जीतना है, शेयर मार्केट में अगर अच्छी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में अपने को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन. तो कैन वी बीट म्यूचुअल फंड? नो. बोलने का मतलब सेबी रेगुलेशंस के ऊपर है,
तो सेबी भी आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो अगर मैं एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कर सकता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कर सकता हूँ, तो मैं एसबीआई में म्यूचुअल फंड क्यों नहीं ले सकता हूँ? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें समझना कि आज की डेट में मुझे जो इनकम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके पास 100 रुपीज है तो पूरा 100 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पर एटलीस्ट 50 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो द क्वेश्चन इज, कैन वी बीट, सॉरी, सो द क्वेश्चन इज एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के, वो देखते हैं। तो मैडम ने जैसे कहा कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा क्या मेरे को, म्यूचुअल फंड जो शेयर्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं वो इफेक्ट करेगा क्या? इफेक्ट तो करेगा, पर म्यूचुअल फंड जो है वो, आपने 1000 रुपया भी म्यूचुअल फंड को दिया तो 1000 रुपए में आप कितने शेयर्स ले पाएंगे? तो मैं अगर एक ले पाऊंगा या 2 ले पाऊंगा या अच्छी कंपनी के 3 शेयर ले पाऊंगा, पर जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप 100, 50, 100, 200 प्लस कंपनीज में इन्वेस्ट करते 1000 रुपया, तो आपका एक कंपनी का जो रिस्क है वो हो गया 5 रुपए का, एक कंपनी का जो रिस्क है वो हो गया 100 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का। तो इसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ जाता है और आपका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं। आपको मैंने बताया कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे होता है। तो वो प्रोफेशनल्स है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो डेली उसका रिपोर्ट बना के काम करते हैं। तीसरा है रिडक्शन इन रिस्क। आपका डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उनके पास नॉलेज भी है और उनके पास टाइम भी है, तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाद में क्या है, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या होता है कि डेडलाइन, सॉरी, ऐश्वर्या का आवाज आ रहा गेट है, म्यूट करेंगे प्लीज। आज 5th है ना? हाँ, हो जाएगा। अपन ने 4th बोला। Aniket Swaraj sir, can you mute yourself? Aniket Swaraj sir. हो जाएगा। फैकल्टी शुरू है, अभी कर लेते वो लोग आपको। तो इनफैक्ट मैंने सुना एसवाई का इकोनॉमिक्स का भी हो गया करके। अनिकेत सर, कैन यू कैसे उसने केस टाइम खुद किया, बराबर से किया है क्या? आज से पीछे रहेगी तो छोड़ेगी नहीं उसको। Okay, is it mute? Okay, thank you very much. No problem. Okay, so can you just mute him, please? अपन बच्चों को अपने को मेनली छोड़ दो। Can you just mute him, ma'am? Yes, sir. Sure. Yeah. Sure, sir. Okay, thank you, ma'am. Okay, so risk reduction होता है, transaction cost भी reduction होता है। जब हम लोग शेयर्स में डायरेक्ट जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को ब्रोकरेज लगता है, बाय करने का, सेल करने का, सब कुछ ब्रोकरेज लगता है। जबकि जो म्यूचुअल फंड होता है अपने से फिक्स फीस लेता है, ट्रांजैक्शन उसका फिक्स होता है, तो उसकी वजह से आपको वो भी एडवांटेजेस है, फिक्स कॉस्ट आपको भरना है। और लास्ट है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो, तो बोलने का मतलब ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, प्लस ये टैक्स सेवर बेनिफिट भी लाता है। तो आप टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। जैसे अभी जनवरी, फरवरी, मार्च है, आपको भी पता है मार्च एंड में आपको टैक्स सेविंग के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, जनवरी में बताना पड़ेगा। अगर 1,50,000 तक का ATC का बेनिफिट है, उसके अंडर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस आप इसमें पैसा भी अच्छा रिटर्न कर सकते हो। ओके, कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैसे भी कर सकते हो। नॉर्मली डीमैट अकाउंट्स, हम लोग काम करते हैं डीमैट अकाउंट्स में, तो ऑनलाइन हमारे ऐप पे ही इन्वेस्टमेंट हो जाती है। पैसा निकालना है, हमारी ऐप पे पैसा निकलता है। आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सब कुछ है। एवरीथिंग इज ए वेरी कन्वीनियंट ऑप्शंस अवेलेबल है। लास्ट है सेफ्टी। सेफ्टी भी बहुत अच्छी है बिकॉज सेबी रेगुलेटेड है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी एडवांटेजेस तो हो गया, सॉरी। अभी व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? ओके, तो बेस्ट वे क्या रहेगा, तो मैंने ये हमारा टॉपिक ही वही है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं आपको SIP क्यों बता रहा हूँ, व्हाई यू शुड गो इन द SIP वे, आपको SIP से क्यों काम करना है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं। पहला तो देखिए कि ये रिकरिंग डिपॉजिट है।
मतलब आप जो आरडी करते हो बैंक में, वही म्यूचुअल फंड में अगर आप आरडी करेंगे तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है आपको म्यूचुअल फंड में। ओके, तो म्यूचुअल फंड में आप एक ही बार इन्वेस्ट करोगे तो उसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, और अगर आप आरडी की तरह करोगे, मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी, सिप बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि मार्केट जो है, हमारे इंडियन मार्केट जो है, वो 8 साल का एक बोलते हैं ना 8 साल का उसका साइकिल है। तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट 5 साल के लिए ऊपर जाता है और 3 साल के लिए नीचे जाता है। तो कब मार्केट, कल से मार्केट आपको कोई गारंटी दे सकता है क्या कल से मार्केट ऊपर ही जाएगा? इज एनीबॉडी कैन गिव यू अ गारंटी? नो। बट एसआईपी में फायदा, अगर मार्केट नीचे भी जाएगा तो भी एसआईपी में फायदा है, क्योंकि अगर आप 5, 10, 15 साल के लिए एसआईपी, लॉन्ग टर्म के लिए जब एसआईपी करते हो, तब एसआईपी में सबसे बड़ा फायदा यह है कि मार्केट नीचे भी जाएगा तो नीचे से कभी ना कभी तो ऊपर मार्केट आता है। तो एसआईपी से क्या होता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। वो क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इज नथिंग बट द एवरेज। सो आपको मार्केट खाली नीचे जाता है तब ज्यादा यूनिट मिलता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो कम यूनिट मिलता है पर अच्छा एनएवी मिलता है। तो बोलने का मतलब उससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है और आपको अच्छा रिटर्न मार्केट में मिलता है। अच्छा क्या मिलता है मैं आपको कैसे बताऊं वो मैं बताऊंगा बाद में। इट इज अ गुड ईएमआई। देखिए क्या होता है, आप सब लोग देखे होंगे कि हम लोग अगर सेविंग करने का कोशिश करते हैं कभी भी, तो सेविंग होता नहीं है। आप सोचेंगे कि यार मैं 10,000 रुपया इस महीने ना बाजू में करूंगा, इस महीने में 10,000 रुपया तो बाजू में करूंगा, 20,000 तो बाजू में करूंगा, कभी नहीं होगा आपका। तो अगर आप वैसे करने से अलावा अगर आप ईएमआई चालू करते हो, समझो घर का, अगर आपने अच्छा घर ले लिया, उसका ईएमआई चालू हो गया, तो उसका ईएमआई कभी गलती से नहीं जाता, ऐसा होता है क्या? या गाड़ी ले लिया, उसका ईएमआई चालू कर दिया, उसका नहीं जाता, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो बराबर जाता है। क्योंकि क्या है, गुड ईएमआई इज इम्पोज्ड, वो बाहर से इम्पोज्ड है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन करने का कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, पर जब वो एक्सटर्नल इम्पोज्ड होता है, जब वो ईएमआई होता है, तो बराबर से हम लोग भरते हैं। एसआईपी में यही रूल होता है कि एसआईपी ये इम्पोज्ड होती है। एसआईपी आप डिसाइड करते हो कि भाई मेरे को 5,000 से शुरुआत करनी है, 5,000 से, तो 5,000 मंथली होते जाएगा, वो इम्पोज्ड है, तो आप पैसा बाजू में रखोगे क्योंकि वो कटने वाला है हर महीने में, ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से। तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट हैबिट। तो आपका जो घर का, गाड़ी का ईएमआई है, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है, ये ईएमआई में आपको इंटरेस्ट आएगा, तो ये इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, आपको किधर भी हर महीना चेक नहीं लिखना है, हर महीना आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट वो जाएगा। ओके, वो अकाउंट से ईसीएस होके जाएगा। सो आपको ऐसा कुछ नहीं है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। प्लस आप एप्लीकेशन से रोज देख सकते हो उसका वैल्यू क्या है। पहले के जमाने में वो कंट्रोल नहीं था, आज आप एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन से रोज आपका इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, वो बढ़ा है कि नहीं, कम हुआ है कि नहीं, सब कुछ आप उस पर देख सकते हो। आप लो इन्वेस्टमेंट मतलब मंथली 1,000 रुपीज से भी शुरुआत कर सकते हो। इफ यू थिंक आई कांट अफोर्ड 10,000 रुपीज, you can invest 8,000. You can't afford 8,000, you can invest 5,000. Not afford 5,000, you can invest 1,000. आप लो आप 500 से भी शुरुआत कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना, स्टार्ट करना। अगर आप स्टार्ट करोगे तो आगे आप बढ़ पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फायदेमंद बेनिफिट है ये, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को आप स्टॉप भी कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आपने चालू किया इन्वेस्टमेंट, मंथली आपका 10,000 रुपीज कट रहा है और 1 साल आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। और वो जो पैसा जमा है उसको लॉन्ग टर्म जाने दो, थोड़ा लॉन्ग टर्म, क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। कितना साल? मिनिमम 5 से 10 साल, मिनिमम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रखना है। तो आप चाहिए तो इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी है वो स्टॉप कर दो, आपका जो मनी है उसको लॉन्ग टर्म जाने दो। ठीक है, पॉज कर सकते हो। समझो आपको लगता है कि भाई 1 साल हो गया, मेरे को अभी जम नहीं रहा है, पर 2-3 महीने में अपना लाइफ क्लियर हो जाएगा, वापिस मैं चालू कर पाऊंगा,
तो आप SIP को पॉज भी कर सकते हो। तीसरी बात, अगर आप 5,000 रुपए SIP चालू करते हो और आपको लगता है कि अभी लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, सैलरी बढ़ गया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। तो SIP यू कैन इंक्रीज ऑल्सो, ठीक है। प्लस अगर 5,000 का 10,000 भी कर सकते हो। उल्टा भी हो सकता है, कल जाके अगर आप 5,000 का SIP कर रहे हो और लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यू हो गया, नाउ EMI ज्यादा हो गया, तो आपको अगर उसको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, 5,000 का 2,500 भी कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि फुल और पार्शियल रिडम्पशन भी कर सकते हो। मतलब समझो आपने 10,000 20,000 रुपए का SIP किया और कल जाके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया कि उसको अपन अगर ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप अगर 6 महीना भी इन्वेस्ट किया है, 1 साल भी इन्वेस्ट किया है या 5 साल इन्वेस्ट किया है, आप कभी भी पूरा पैसा निकाल सकते हो। आप उसमें से आधा पैसा या एक पर्टिकुलर अमाउंट भी निकाल सकते हो और बाकी का अमाउंट पे आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता रहेगा। सो इट इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट, कन्वीनियंट प्रोडक्ट है जो सबको चालू करना चाहिए एट योर ईज। आप कोई भी कंफर्टेबल अमाउंट से इसको शुरुआत कर सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो कोई क्वेश्चन अगर इसके बारे में है तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में और फिर कैलकुलेशंस में जाते हैं। एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन? You can unmute yourself and ask the question. Okay, no questions? All right, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर यस यस यस, एक क्वेश्चन है, वो जो जी। मिड कैप लार्ज कैप जो होता है ना SIP पे, हम्म, उसमें कौन सा प्लान अच्छा होता है? मतलब उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? ओके, देखिए कैसा है, मिड कैप कंपनीज मतलब क्या और लार्ज कैप कंपनीज मतलब क्या। पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में 32 टाइप्स होता है, 32 प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड मनी मार्केट, मतलब जिसको हम लोग 1 ईयर मार्केट बोलते हैं, डेट मार्केट, उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत तरह के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कंपनीज मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर जब कैपिटल निकल जाता है, 20,000 करोड़ के ऊपर, तो उसको बोलते हैं लार्ज कंपनीज। और 200 करोड़ से 20,000 करोड़ तक जो कंपनी होता है 200 करोड़ से, उसको बोलते हैं मिड कंपनीज। तो मिड कैप कंपनीज कौन सी अच्छी है या लार्ज कैप कंपनी कौन सी अच्छी है, ये अच्छे का बात नहीं है सर। बात ये है कि आपको क्या करना है। अगर आपको 5 से 6 साल में पैसा चाहिए, समझिए आपको एग्जांपल लीजिए घर लेना है, तो आपको बेटर ऑप्शन है कि आप लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, बिकॉज लार्ज कंपनी जोर से नीचे नहीं जाएगी, जोर से उसमें प्रॉब्लम नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, पर वो धीमे धीमे बढ़ती है हाथी की तरह। तो लार्ज कंपनीज एक्ट लाइक अ वेरी वेरी स्टर्डी पोर्टफोलियो, बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगी और उस पर बहुत ज्यादा मार्केट का रिस्क नहीं है। मिड कैप कंपनीज हालांकि स्टर्डी है, पर उसमें मार्केट रिस्क है, क्योंकि वो कंपनीज अभी अभी थोड़ी बड़ी बनी है। जैसे जैसे हो गया बजाज फाइनेंस ये कंपनी बहुत अच्छी है, इट्स अ मिड कैप कंपनी। तो बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको जो पैसा है, मिड कैप या लार्ज कैप अच्छा या बुरा नहीं है, आपको जो करना है लाइफ में उसके लिए आप म्यूचुअल फंड का यूज कीजिए। म्यूचुअल फंड कम सेकेंडरी। आपका पहला क्या है कि आप गोल डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको पैसा किस लिए चाहिए, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड लीजिए, तो वो आपके लिए सही होगा। ओके, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो मिड कैप अच्छा है, पर मिड कैप फंड को लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। और अगर आप स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं तो आपको लार्ज कैप कंपनीज अच्छा है, जो आपको जल्दी पैसा आपको मुहैया करा सकता है। सो आई होप आई गिव यू द ओके सर, थैंक यू। लेकिन वैसा कैसा होता है, टाइम पीरियड पे समवन से टाइम पीरियड होता है, उसमें लाइफ टाइम के लिए हम एज डिक्लेयर करते हैं, इतने साल के लिए रखना चाहिए। तो उसमें आप कौन से चीज सजेस्ट कर सकते हैं? क्या है वो निप्पो इंडियन का है, वैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट में रखने वाला SIP का फंड जो आप बता सकते हैं इधर कि उसमें देखिए इन्वेस्ट कर सकते हैं?
देखिए म्यूचुअल फंड के नाम हमें बताना अलाउड नहीं है सेशंस में, ओके, क्योंकि कंसेप्ट वाइज ही हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपका क्या आपका टारगेट है उसके हिसाब से मैं आपको 1 to 1 बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बट ड्यूरिंग द सेशंस वी कैन ओके नॉट सर, टेक द ओके। नेम ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस। ओके, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन ऑन कंसेप्ट? कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है क्या? ओके, आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कैलकुलेशंस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म? तो लॉन्ग टर्म, वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म किसने सिखाया? आप सबको पता है, इस आदमी ने लॉन्ग टर्म सिखाया कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। ये किसने सिखाया लोगों को? इस आदमी ने सिखाया, इनका नाम है वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने सिखाया। अभी इन्होंने क्या बताया है दोस्तों? इन्होंने एक 3 बहुत ही डायनामिक फैंटास्टिक ये दिए हैं, गुरु मंत्र दिए हैं। वो गुरु मंत्र अगर आप फॉलो करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी एसआईपी में, तो दोस्तों जबरदस्त फायदा आपको होने वाला है। वो गुरु मंत्र क्या है और वो गुरु मंत्र का पीछे का ज्ञान क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र क्या है, ये आप चाहिए तो पेपर का प्रिंट आउट निकाल के आपके इस पे रख दीजिए, ओके। सो इट्स अ गुरु मंत्र, सिंपल है, आपको अर्ली स्टार्ट करना है, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करो दोस्तों। राइट क्लास में इन्वेस्ट करना है और आपको रेगुलरली सेव करना है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि उनके जो गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र के पीछे क्या स्टडी है, मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो है स्टार्ट अर्ली। अर्ली क्यों चालू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये समझिए। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एसआईपी में काम कैसे होता है। अगर आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर सक्सेना। मिस्टर गुप्ता इज 25 ईयर ओल्ड एंड मिस्टर सक्सेना इज 45 ईयर ओल्ड। मिस्टर सक्सेना इज 45 के है और मिस्टर गुप्ता 25 के है। 10,000 इन्वेस्टमेंट आज अगर वो चालू करते हैं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट मिस्टर गुप्ता एट द एज ऑफ 25, और सबको 60 को ही रिटायर होना है, आपको रिटायर नहीं होना है तो भी आपको यूनिवर्सिटी 60 को रिटायर कर देगा। तो बोलने का मतलब सबके पास 60 एज तक ही इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 25 इयर्स के लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगर एसआईपी में, और 35 साल का कंपाउंडिंग मिलेगा, 35 इयर्स अगर वो आदमी इन्वेस्ट करेगा, तो उनका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होता है 42 लाख रुपए का, 42 लाख रुपीज। और 42 लाख रुपीज जो इन्वेस्टमेंट है उसका एज ऑफ 60 कितना वैल्यू हो जाएगा? 11.41 करोड़। मैंने एक्सपेक्ट किया है 15% वैल्यू, मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि 15% से वैल्यू बढ़ेगा हर साल, 15% से 15% से, तो उनका वैल्यू 10,000 से 42 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 11.41 करोड़, मिस्टर गुप्ता। एंड बाय मिस्टर सक्सेना अगर चालू करते हैं एट द एज ऑफ 45, तो उन्होंने 20,000 भी इन्वेस्ट किया, 10,000 नहीं बात कर रहा हूं मैं, 20,000 इन्वेस्ट किया, पर उनके साथ तो 15 साल है, सिर्फ 15 ईयर्स है, क्योंकि 60 पास में आ गए हैं, तो उनको भी 15% का रिटर्न मिला। अगर 15% का रिटर्न मिला तो भी 15 साल में उनका 36 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मिस्टर गुप्ता का 42 लाख हुआ, इनका 36 लाख हुआ। 36 लाख का कितना हुआ? 1.23 करोड़ रुपीज। सो अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे उतना जल्दी दोस्तों चालू करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली बिकॉज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन द लॉन्ग टर्म। आप जितना साल के लिए रखोगे, एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग 11th ईयर से चालू होता है दोस्तों। सो 11th ईयर से एक्चुअल रिटर्न आप बनेंगे, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलना चालू हो जाता है 11th ईयर से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा रिटर्न भी चाहिए और लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो ये रिटर्न आपका बन सकता है। तो स्टार्ट अर्ली, दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल इज राइट एसेट क्लास। राइट एसेट क्लास अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ग्रोथ डिफरेंट एसेट का देखा मार्च 1981 से मार्च 2018। तो मैं आपको जो सोर्स बता रहा हूं वो बीएससी इंडिया से बता रहा हूं। अपना एक गोल्ड हैंडबुक निकलता है आरबीआई से,
उसको बोलते हैं गोल्ड हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप गूगल कर सकते हो। तो ये गोल्ड हैंडबुक जो है इसमें पूरा का पूरा डेटा आता है। तो हमने जो स्टडी किया है मार्च 81 से मार्च 2018 का किया है। अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता था तो कहाँ पे, इन्फ्लेशन, गोल्ड, सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट एंड सेंसेक्स। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होता था तो इन्फ्लेशन जो है वो 1000 रुपए का इन्फ्लेशन हो गया 8000 रुपया। मतलब इन्फ्लेशन कितना हुआ है, 8000 रुपया। जबकि वही 1000 रुपया मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता था 81 में, तो उसका वैल्यू होता था 17,000 रुपीज। अगर मैंने सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता था उसका वैल्यू होता था 14,000। बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता था तो 20,000, कंपनी डिपॉजिट में 27,000, जबकि सेंसेक्स में वही 1000 रुपीज का वही साल में कितना हुआ है, 1,51,000। तो बोलने का मतलब आप कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो उस पे गेम है। मैं वापिस बताता हूँ, मैंने आपको बताया था। तो इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो 81 से 2081 तक का इन्फ्लेशन पकड़ा है 6.1%। तो अगर गोल्ड मुझे 8% रिटर्न देता है वही सालों में, तो एक्चुअली रियल रिटर्न मेरे को कितना मिल रहा है, 2%। 8 - 6 2% का रिटर्न मिल रहा है। सिल्वर मुझे 2% रिटर्न दे रहा है, बैंक डिपॉजिट 2.5 दे रहा है, कंपनी डिपॉजिट 3.5 दे रहा है। पर अच्छा रिटर्न किधर मिल रहा है, सेंसेक्स में मुझे 8.4% एडिशनल रिटर्न मुझे मिल रहा है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म, अगर आप राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत अच्छा पैसा आपका बन सकता है। ओके, सो राइट एसेट क्लास द सेंसेक्स, यू कैन सी हियर। नाउ इन्वेस्ट रेगुलरली। तो मैंने आपको बोला था कि एसआईपी आपको क्यों करना चाहिए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है दोस्तों, तो अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हो, अगर आप लमसम 4000 रुपया इन्वेस्ट करोगे और 10 रुपए का प्राइस है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड के प्राइस को बोलते हैं एनएवी। अगर 4000 रुपया इन्वेस्ट करोगे 10 रुपए को, तो 400 यूनिट मिलेगा आपको। मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 400 मिलेगा। पर वही अगर हजार रुपया करके इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो एवरेज यूनिट एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाएगा, तो आपको जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। बोलने का मतलब क्या है, आप लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप एसआईपी से पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको अगर टैक्स सेव करना है तो हर महीने का आप एसआईपी भी टैक्स सेवर में चालू कर सकते हो। आप सबको टैक्स बचाना है, राइट। 1,50,000 का विंडो है तो आप उसमें टैक्स बचा सकते हो। पर अगर आप उसका एसआईपी चालू करोगे तो एसआईपी में टैक्स भी बचेगा, प्लस आपको ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी मिलेगा, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा रिटर्न क्रिएट होगा। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से क्या होता है, राइजिंग मार्केट में यूनिट जो परचेस है वो कम हो जाती है पर वैल्यू बढ़ती है, और फॉलिंग मार्केट में क्या होता है, मार्केट में वैल्यू नीचे जाती है पर यूनिट ज्यादा परचेस होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा एसआईपी में है और ये डिसिप्लिन से होता है। सो अंडरस्टैंड, आप कहीं पे तो ये लिख लो। सो इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टर्म, आपको अर्ली रिटर्न, अर्ली इन्वेस्ट करना है तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, और मैंने बोला कि इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास। ये 3 चीजें आप याद रखना, ठीक है। सो ये 3 गोल आपको याद रखने, थ्रू द एसआईपी आपको इन्वेस्ट करना है। अभी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मार्केट जो है वो शेयर मार्केट में ना टाइम पे पैसा लगाना चाहिए। 2008 में मार्केट नीचे था तब पैसा लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट टाइमिंग डज नॉट मैटर। आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया डेटा आपके पास है। ये डेटा मैंने लिया है बीएससी इंडिया से। ओके, पीरियड है जनवरी 88 टू मार्च 18। अगर आप इधर देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा पकड़ा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट आपने किया हाईएस्ट सेंसेक्स वैल्यू पे। मतलब मैं बात कर रहा हूं 1988 से 2018 तक हमने हर दफा जब कब इन्वेस्ट किया, जब हाईएस्ट सेंसेक्स वैल्यू था। हाईएस्ट सेंसेक्स वैल्यू पे भी हर साल इन्वेस्ट मैंने किया, फिर भी 11.5% का रिटर्न बैठा है सेंसेक्स में 29 ईयर्स में। और मैंने फिक्स इन्वेस्ट किया लोवेस्ट सेंसेक्स वैल्यू पे, जब मार्केट लोवेस्ट था, समझो पकड़ो मैंने हर लोवेस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल बट मैंने लोवेस्ट वैल्यू पे इन्वेस्ट किया तो रिटर्न बैठा है 13.99। जबकि अगर मैंने सिस्टमैटिक हर महीने में 1 तारीख को इन्वेस्ट किया होता था लास्ट 29 ईयर्स, तो मेरे को रिटर्न आया है 12.89%।
तो बोलने का दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर है, मार्केट कल नीचे जाएगा क्या, ऊपर जाएगा क्या, क्या लगता है मार्केट, ये क्वेश्चन आपके माइंड में कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो मार्केट चाहिए आप हाईएस्ट में इन्वेस्ट करो, मार्केट चाहिए आप लोवेस्ट में इन्वेस्ट करो, या आप हर महीने में इन्वेस्ट करो, आपका एवरेज जो है वो 2% से सिर्फ बदलता है। तो इसीलिए हर महीना अगर आपको, अगर पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो हर महीना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन टिल, मैंने 4 स्लाइड आपको दिखाई है, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन टिल दिस? Is it clear दोस्तों? Everyone is clear about this? Yes, sir. Yes? Okay. Do you have a question? Anybody has a question? Okay, चलो ठीक है, ग्रेट। तो आपको क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। अगर आप सेंसेक्स का रिटर्न देखेंगे तो 39 इयर्स का 16% है, उससे भी ज्यादा है। अगर मैं 2022 को देखूं तो आज 60,000 सेंसेक्स है। ओके, अगर कंपाउंडिंग की बात करें, मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की क्यों बात कर रहा हूं, अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट आज करते हो, अगर 15% का रिटर्न है तो 5 साल में डबल हो जाता है पैसा, 2 रुपया बन जाता है, 10 साल में 4 रुपया हो जाता है, 15 साल में 8 रुपया हो जाता है, 30 साल में 64 रुपीज हो जाता है दोस्तों। हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो अपने लाइफ में लाइए तो बड़ा पैसा बनेगा आपका। अगर आप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न भी देखेंगे लास्ट 15 सालों का, मैं लास्ट 15 साल की बात कर रहा हूं, तो सेंसेक्स से अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में दिया है। मैं एसआईपी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तो 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट आपने लास्ट 15 साल में किया होता था, 10,000 का, 10,000 का, तो एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एवरेज की बात कर रहा हूं, विच इज 16.25%। 16.25%। अगर वही सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता था तो 47,000 बनता था, हर महीना 10,000 इन्वेस्ट किया होता था। तो 10,000 इन्वेस्टमेंट लास्ट 15 साल में कितना इन्वेस्ट हुआ, 18 लाख। वो 18 लाख का सेंसेक्स में होता था 47 लाख, और वही एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहा हूं, एवरेज 68 लाख बनाए दोस्तों। So even if you take the mutual fund average, forget about best mutual fund, I'm talking the average of mutual fund also makes some money for you. Okay, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते कि लॉन्ग टर्म रिस्की नहीं है क्या, म्यूचुअल फंड में अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा, सेंसेक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा तो रिस्की नहीं है क्या? तो ये डेटा जरा पढ़ने के लिए थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, क्योंकि मोबाइल में रहेगा या लैपटॉप पे रहेगा तो, पर मैं आपको बताता हूं ये डेटा क्या बताता है। अगर आप इक्विटी में 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 और 15, अगर लास्ट ये डेटा है करीबन 80 से, ये डेटा में यही बताया गया है कि आप जब भी इक्विटी में 10 इयर्स और प्लस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10 इयर्स और प्लस के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो अगर आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी या सेंसेक्स या इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिंपल बात है, फियर, ग्रीड और होप में मत पड़िए। बहुत बार ऐसा होता है ना, मार्केट नीचे जाता है तो फियर लगता है अब क्या होगा आगे, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा। जब मार्केट बढ़ता है तो लोग ग्रीड में आ जाते हैं, फटाफट कुछ ना कुछ एसआईपी चालू करो, इक्विटी चालू करो, ये चालू करो, वो चालू करो करते हैं। फिर कुछ ना कुछ लाइफ में हो गया तो फटाक से निकाल देते हैं। फिर मार्केट नीचे जाता है तो होप लगता है कि अपने को कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ आएगा। सो ये मार्केट जो है, ये मार्केट का जो रिटर्न है वो फियर, ग्रिड और होप पे चलता है। अगर आपको इन सबको बंद करना है तो द बेस्ट वे टू डू इट इज अ एसआईपी। और मैं एसआईपी का कुछ कैलकुलेशंस इसमें बताना चाहूंगा और फिर क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। दोस्तों एक्सेल दिख रहा है क्या? एक्सेल इज विजिबल? यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। तो हम लोग एक्सेल पे देखते हैं एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग द मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज। मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज। तो अगर आप 5,000 रुपया करते हो तो एग्जाम्पल देखो, मैंने 12% रिटर्न पकड़ा है, 12%। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिनिमम रिटर्न, forget about maximum return. I am not talking about 16%, 18%, 20%. I am talking about 12%. Even if you make investment for
लेट्स से यू हैव 20 इयर्स, 20 साल आपके पास है, 20 इयर्स है, तो आपका रिटर्न कितना हो जाता है? आपका 12 लाख का कितना हो जाता है? 45 लाख रुपीस हो जाता है। सो बोलने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 20 साल भी आज है, 20 इयर्स भी मेरे पास है, तो भी अगर महीने का 5,000 रुपया भी मैं बाजू में डालूं, तो भी मेरे पास अराउंड 45 to 50 लाख रुपीस बाजू में हो जाएगा अगले 20 साल में। ओके, वही अगर मैं वही पैसा अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालता हूं, एग्जांपल लीजिए मैं डालता हूं पीएफ में, ओके, तो पीएफ में कितना होगा? ओके, चलो हम लोग एकदम कम इंटरेस्ट रेट से बात करते हैं। अगर मैं एलआईसी की पॉलिसी में इन्वेस्ट करना हूं, नाउ मोस्ट ऑफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एलआईसी पॉलिसी। ओके, एलआईसी पॉलिसी गलत नहीं है, पर जिस तरह से हम लोग उसको बाय करते हैं ना, वो गलत है। एलआईसी पॉलिसी में रिटर्न कितना है? तो देयर आर मेनी पॉलिसीज जिनका रिटर्न 3 to 4% है। सो 90% प्रोडक्ट जो है उसमें रिटर्न 3 to 4% है, किसमें 4 to 5% है। तो मैं एवरेज रिटर्न 4% लेता हूं। तो अगर मैं 4% भी लूं तो भी कितना होता है 20 साल के लिए? अगर वही मैं 5,000 रुपए एलआईसी में इन्वेस्ट करता हूं तो 4% से कितना होता है देखो। तो मैं 12 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, जहां पे मेरा 45 लाख होता था वहां पे मेरा 18 लाख रुपया हो रहा है। सो इवन इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन एलआईसी then it is giving me 18 lakh rupees. If I am investing in let's say FD, fixed deposit, मैं FD में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो 12 लाख का कितना हो रहा है? 22 लाख रुपया हो रहा है, 22 लाख। मतलब अगर आप एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल जनरेट मोर रिटर्न फॉर यू। सो आई एम नॉट सेइंग अगेन एलआईसी इज नॉट बैड, बट वी आर यूजिंग द बैड प्रोडक्ट्स, वी आर यूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट्स। ओके, एलआईसी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है दोस्तों, पर वो प्रोडक्ट नॉर्मल पीपल को पता ही नहीं है। मैं जितने भी लोगों को पूछता हूँ सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट आपके पास है क्या, तो वो प्रोडक्ट छोड़ के सब प्रोडक्ट होता है एलआईसी का, कि जिसमें कमीशन हाई होता है पर उसमें आपकी वाट लग जाएगी। तो बोलने का मतलब क्या है कि 4% से रिटर्न कितना हो रहा है? 18 लाख रुपया। आपके 12 लाख रुपए का सिर्फ 18 लाख रुपया हो रहा है। उससे अच्छा तो एफडी करो, कितना हो रहा है? 22 लाख रुपया हो रहा है। अगर आप पीएफ में डालोगे, प्रोविडेंट फंड में डालोगे, तो कितना हो रहा है? 7%। प्रोविडेंट फंड कितना हो रहा है देखो? 25 लाख रुपया हो रहा है। बट वही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे, अगर गोल्ड में डालोगे तो 8% हो गया, पकड़ लो, तो 28 लाख रुपया हो रहा है। वही अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो 12% भी रिटर्न मैंने पकड़ा, 12%। एसआईपी किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 12%, तो भी मेरा कितना हो रहा है? 45 लाख हो रहा है। और आपको 15% मिला, 15% जो दिया है एसआईपी ने रिटर्न, 16% 17% का, तो मैं 15% भी पकड़ू तो भी कितना हो रहा है? 66 लाख। तो बोलने का मतलब 12 लाख का 66 लाख लिक्विड में आज कौन देगा आपको? महीने का 5,000 इन्वेस्ट करके अगले 20 साल में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 66 लाख रुपीस देने का ताकत रखता है? देयर इज नो अदर प्रोडक्ट। एसआईपी को आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो और अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन। आई गेस 157 हो गया है। ओके, सो विल टेक द क्वेश्चन इफ पॉसिबल, इफ टाइम परमिट करता है, मैडम परमिट करते हैं तो, एंड विल फिनिश ऑफ दिस थिंग। सो एनी क्वेश्चंस? Sure, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, sir, for giving your valuable insights on SIP. Yes, It ma'am. was a wonderful opportunity to start investment for those who were unaware of this wonderful investment opportunity. Many thanks to all for being participating. Now, I would like call our Honorable Principal, Dr. G.D. Giri, to address the session. Principal, sir? Hello. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Good afternoon, Palchetkar sir. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, we have conducted this Yes. webinar series for 3 days. Yes, yes, and sir. the topic was pertaining to the faculty development program Yes. for
professional and personal growth of a teacher. And really, Yes. in these 3 days, we could achieve the objective of our this webinar, because I attended almost all the sessions, and I'm sure that all participants, you are benefited out of this. Right. One thing I observed that Yes. this particular webinar series and lectures by experts, Yes. really it would have helped all of us, because there are 4 aspects in teacher's life. Yes, sir. One is our academic activity, that teaching pertaining to the students. That is another part where we physically involve. Another part is research, where we are mentally involved. And third part is our family and our work. And fourth one, that is care of our family and ourselves for our future. So in teaching, that is our daily work. We are very much perfect in that, and we are doing that sincerely in the interest of our students. But we need a proper guidance in the field of research, in the field of publications. So the first session was pertaining to the publications and research activities of a teacher. Second was concerned with work and life balance. That is very much essential, because we can, if we are able to maintain proper balance, we can look after our family, as well as we can be a good teacher, a good researcher also. And sir, Jay sir, you have presented today about the investment, and this investment is very much essential for teachers, especially because nowadays we do not have any pension. Our teachers, they don't have any pension. Our time was golden time. We are having pension, but after 2,500, there is no pension. Most of the schools, colleges are coming up as a private school and colleges. So you have to take care of your future at your home. Nobody is going to help you. And so that you should develop, you should inculcate that habit of investment. And as Jay sir, as an expert in the field of investment, he has guided us. And really, I am also very much overwhelmed by seeing the contents of his presentation, through which I also could gain lots of knowledge. Because at this age, at this time, I feel that I would have earned lots of money if I would have gone properly at early age for proper investment. I also feel like that. So opportunity is given to all the participants, to the all teachers through this faculty development program, and because of which I'm sure that you have gained the knowledge from this, and you will implement it, so that there will be development of our professional activities, as well as we will be very much perfect in our personal life also. So Jay sir, on behalf of KLE Society, I express my sincere thanks. Our society is 106-year-old society, and we are running, we are achieving heights under the leadership of our chairman, Dr. Prabhakar Kore. And sir, we are very happy to see all the participants, and to you also on this particular day. So all participants, thank you very much for your cooperation, your participation, and congratulations to our IQSC and training and placement team. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Now I call upon Assistant Professor Tanuja Suman and Assistant Professor Amar Verma for taking up the question and answer session. Tanuja ma'am. Thank you, ma'am. Yes. So moving to the question and answer session. Yes, sir. There are some questions in the chat box. I'll read it out for you, sir. Okay. The first question is asked by Aarti Pardashi ma'am. She's asking, which app is good to start with the investment? Okay. See,
there are many apps in the industry right now, many apps. Okay, if I name a few, like Grow app is there. Okay, another app is Buy ET Wealth app is there. Then there are numerous fund managers like wealth managers like me. Okay, so what are your requirements? If you just want to do the SIP, so you can go by the app, you can go by the websites. There are many websites also. Okay, like Plan My SIP. I've just heard about some few. They are also very good. But if you want to plan your life, you should go by the very good advisor. Okay, so the two different things are there. One, if we want to start the SIP, you can go by the app. Okay, and if you really want to plan your life, then you should go by the advisor, a very good a planner or an advisor who can guide you for your goals. बच्चे का शादी करना है, बच्चे का एजुकेशन करना है, रिटायरमेंट है, उसकी जो कैलकुलेशंस है उसके लिए हेल्प कर सकते हैं. ऐसे एडवाइजर्स को आप ले सकते हैं ऑन बोर्ड. Thank you, sir. Yeah. The next question is from Assistant Professor Trushant Wadkar. Asking, if we are investing in mutual funds, we get good annual returns, but Right. how mutual fund can give us this return? How they, from where they earn? Okay, so great questions. Basically क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो है, okay, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन सम एसेट्स, लाइक इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज. एग्जांपल लीजिए कि लेट्स से आई एम यूजिंग कोलगेट एवरी डे. एवरीवन्स यूज द कोलगेट मॉर्निंग. अभी सब मॉर्निंग में कोलगेट यूज करते हैं. कोलगेट करने के बाद लोग लक्स साबुन से नहाते हैं. कोलगेट क्या है? कोलगेट एक कंपनी है जो रोज आप उसका प्रोडक्ट यूज करते हो. लक्स क्या है? एक गोदरेज करके कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर करके कंपनी है, उनके प्रोडक्ट है. उसके बाद आप चाय पीते हो, टाटा टी. ओके, टाटा टी एक कंपनी है जिसका चाय करोड़ों लोग रोज पीते हैं. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, यू आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज. इफ यू लुक एट योरसेल्फ राइट नाउ, आप टोस्ट से देखो ऊपर तक आप कंपनी को कंज्यूम कर रहे हो. आपके बालों में तेल लगाया पैराशूट का, मेरिको कंपनी का है. आपके बाजू में जो दीवार है ना, उसको पेंट लगा है एशियन पेंट का. आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो वो भी कोई कंपनी का है. वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, और जो कंपनी जो है वो पैसा बना रही है. सो उसकी कंपनी में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो उससे अर्निंग बनती है. और वो अर्निंग से क्या होता है कि हमें पता नहीं अगले 20 साल में कौन सा अच्छा कंपनी हो सकता है, बट प्रोफेशनल नोज इट. तो हम लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके प्रोफेशनल को पैसा देता है. प्रोफेशनल इन्वेस्ट इन सच कंपनीज एंड गिव अस बैक अ रेट ऑफ रिटर्न. तो बोलने का मतलब क्या होता है? उससे आपका रिटर्न बढ़ता है. तो रिटर्न कम्स फ्रॉम अर्निंग. तो हर कंपनी जो पैसा कमाता है उसकी अर्निंग से प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट से आपका पैसा आता है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. Thank you so much, sir. Welcome. So all the questions are over. Now Okay, I'll request to all the participants, if you want to ask any question, you can directly to sir by unmuting yourself. Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon, sir. Sir, I have some questions in my mind. Yes, sir. That as you said, we are purchasing the products, the company is getting profit, then Yes. that company is providing such kind of investment. So we can invest the money into these companies, Right. and thereafter we can get a good amount of return, right? Yes. Yes. So what is their resource? How they earn? How they earn? Which I didn't get it. मतलब सर कि अभी हम उनके पास इन्वेस्ट करते हैं, राइट? Right. अभी जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक्सेस मनी था तो हमने बैंक में डाल दिया. Right. बैंक हमको 5% 6% इंटरेस्ट दे रहा है. सो Right. यहाँ पे हमारा बेनिफिट हुआ. लेकिन बैंक अगर अपने लॉकर में ही पैसे रखेगी सारे पब्लिक के, तो उनका तो पैसा इंक्रीज होने वाला है नहीं. डेफिनेटली नहीं होगा. तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक से लिया हुआ पैसा 5-6% से उठा के मार्केट में लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं. डेफिनेटली लोन से उनको जो डिफरेंस में जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट वो हमें पे करते हैं 5%, बचा हुआ उनका प्रॉफिट हो जाता है. डेफिनेटली बराबर है सर, एकदम बराबर. सो मैं सर यही पूछ रहा हूँ आपको कि हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न म्यूचुअल फंड देती है, राइट? लेकिन म्यूचुअल फंड को इनकम कहाँ से मिलता है? हाउ दे कैन पे अस ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न? ओके,
म्यूचुअल फंड क्या होता है सर, देखिए आप अगर एग्जांपल लीजिए कि मैं अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली, समझो एग्जांपल लेता हूँ, कोई दूसरा आदमी है जो 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई तीसरा आदमी है जो 1 लाख रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहा है, कोई लमसम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा करके एक पूल ऑफ मनी म्यूचुअल फंड में आ जाता है, विच कुछ कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम में तो 30,000 40,000 करोड़ के ऊपर पैसा होता है। So if I give you the some example of Axis, some SBI funds, कुछ में तो 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपीस एक एक स्कीम में इन्वेस्टेड है। तो जब आपके पास 50,000 करोड़ रुपीस है तो उस पे म्यूचुअल फंड आपको फिक्स ये चार्ज करता है, फिक्स एक्सपेंसेस चार्ज करता है। तो ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंसेस फिक्स चार्ज करता है वो है 2.5%, 1.5% से 2.5% चार्ज करता है। तो अगर 1.5% से 2.5% आपको चार्ज करता है, वो पूरे 35,000 करोड़ पे लगता है। तो उनका इनकम क्या है, जो फिक्स फीस है वो उनका इनकम है, ठीक है। और बाकी का जो रिटर्न बच गया वो रिटर्न आपको वापस कर देता है। दैट इज हाउ दे वर्क सर। ओके ओके, क्लियर है? थैंक यू सर। एंड सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग जो कंसेप्ट है, राइट सर, कंपाउंडिंग में क्या होता है कि प्रीवियस मनी व्हाट एवर वी हैव इन्वेस्टेड ऑन दैट वी गेट इंटरेस्ट, राइट, and again that interest get added into the previous money, so it gets compounding, right? Right. But if we will see that our current value, that is अभी जो हमारा net present value चल रहा है, right, it get degrade in the future, right? Because देखो अभी आज हम लोग भी सोचते हैं, हमारे मॉम डैड भी बोलते हैं कि हमारे टाइम पे 1 रुपए में हम लोग क्या क्या करते थे, राइट। और आज के डेट में देखोगे कि आज के डेट में 1 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्यूचर में सर वैल्यू जो है, वॉल्यूम जो है वो डिग्रेड हो जाता है, राइट? 100%। सो सर ये जो कंपाउंडिंग है, इसमें हम लोग अगर ये कंपाउंडिंग वैल्यू हो जाता है, सो हाउ वी गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, मतलब 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है? मान लो कि आज मैं 15 लाख रुपीज मेरे पास है, राइट, उसको आज 15 लाख, आज की डेट में मुझे 15 लाख का वैल्यू 15 लाख ही है, बिल्कुल। मैं 15 साल के बाद अगर 15 लाख अर्न करता हूँ तो उसका वैल्यू तभी बहुत कम हो गया रहेगा। 100%। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मुझे उतना लॉस भी नहीं होगा सर? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। सी इसीलिए तो पहला मैंने व्हाई टू इन्वेस्ट बताया था। आप इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं सर बेसिकली, राइट? डिग्रेडिंग द वैल्यू मींस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। सो द लास्ट 30 इयर्स इन्फ्लेशन इज 6.8% सर। तो जो भी रिटर्न आप 6.8% से रिटर्न कम कमाते हो, ओके, जिस भी प्रोडक्ट में, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं? LIC भी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, फिर फिक्स डिपॉजिट आता है। तो इसमें आपका जो आपका लाइफ है ना मेंटेन होगा, उसमें आप ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन के ऊपर पैसा नहीं कमा रहा है, जस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है। तो आप जो बोल रहे हो तो एकदम बराबर है। पर म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट है तो वो आपको 12 से 15% का रिटर्न देते हैं। सो इफ द इन्फ्लेशन इज एट 6-7% एंड योर रिटर्न इज 12 to 15%, देन यू मेक मोर रिटर्न देन इन्फ्लेशन। तो उसकी वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ता रहेगा सर, उसकी वजह से। तो दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर आइडिया टू इन्वेस्ट। तो वही तो मेन क्रक्स है आप जो बात कर रहे हो। एग्जैक्टली सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Thank you, sir. Sir, actually, see, the inflation is nothing but the difference between income and expense, right? Income and expense. That is surplus, sir. Income minus expense is surplus. But sir, how inflation works in the market? How you can say that it is 6%, how it is 8%, like that? सर एक्चुअली हम लोगों ने 6.8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो RBI मॉनेटरी पॉलिसी में WPI एंड CPI ऐसे दो इंडेक्स निकालता है। सो WPI इज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI इज अ कस्टमर प्राइस इंडेक्स। सो बेसिकली RBI आपको हर साल का इन्फ्लेशन रेट देता है सर, हर साल का। ऐसे लास्ट 30 साल का अगर आप एवरेज करेंगे तो आपका पता चलेगा कि एवरेज इन्फ्लेशन मार्केट में क्या है। सो ये खुद RBI गवर्नमेंट आपको मॉनेटरी पॉलिसी में लिख के देता है सर, एवरी ईयर बजट में देता है। Okay, okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for enlightening our knowledge. No problem, sir. Welcome. Anybody has a question? Yes, anybody has any question, you can ask. I think Amar sir,
There was a Sir, participant. I have a question. Yeah, okay. Very good afternoon, sir. Myself is Good afternoon, Assistant Professor Poonam Kunjakur. Yes, ma'am. Sir, I do investing in a mutual fund from last 2 years, but Great. many times the dividends and things are they are declaring. At that time, they're high up their rates and for a few days, and there is a lot Okay. of fluctuations in the market. That what I have observed, and many Okay. times I put it in the wrong place, and I'm Okay. getting a lot of loss in that. So it Okay. is very difficult what I feel because we are not getting that much time to study for the market. So how we have to Exactly. be study, how we have to be minimize our search. Can you say something on that, sir? Okay, great. So it's a very important thing, ma'am. You need, मतलब one need to understand is we cannot be expert in every aspect. मतलब क्या होता है कि देखिए आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते. You need a good financial advisor who can guide you on this. तो हम मतलब सी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर एक पे पास आज टाइम नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन द मार्केट इज टाइम नहीं है. सो व्हाट वी डू, हम लोग एक कोई तो ऐप ले लेते हैं, द टॉप 10 म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एंड हम लोग गूगल करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. बट दैट इज नॉट हाउ इन्वेस्टमेंट शुड वर्क. आवर इन्वेस्टमेंट लाइफ इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अपने को 2 साल में कुछ खर्चा करना है, 4 साल में कुछ खर्चा करना है, 5 साल में कुछ खर्चा करना है. सो अगर हम लोग अपने गोल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को अलाइंड करेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. सो डेफिनेटली देयर आर बुक्स, बहुत सारी अच्छी बुक्स है. CNBC TV18 की बुक्स है, आप उसको रीड कर सकते हैं. बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे इन्वेस्टोलॉजी है, बहुत सारी यूट्यूब चैनल है मैम, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द गेम, डू यू हैव टाइम? यू विल हैव अ नॉलेज, बट वू यू हैव अ टाइम? प्रॉब्लम इज आपको इनकम कमाने में ध्यान देना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप अच्छा ले लीजिए कोई जो आपको गाइड कर सके होलिस्टिक व्यू से कि आपको क्या करना पड़ेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोफेशनल जो है वो आपके लिए उस हिसाब से काम कर सकता है. अगेन आपको अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. बट रेट ऑफ रिटर्न, देखिए पहली बात तो मैं आप सबको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इसलिए मत इन्वेस्ट कीजिए. रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो का सेफ्टी भी होना चाहिए, which is also a very important part of it. So ये ध्यान में रखिए. ओके, सो मैम आप खुद करने के अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर लीजिए, और बुक्स बहुत सारे, CNBC TV18 का बुक्स आप गूगल कीजिए, बहुत सारे बुक्स है म्यूचुअल फंड पे. I'm taking the advice from SBI bank officer who was dealing with that, but many times whatever the prediction he has given, they are not up to the mark, even though. You should change the professional then. Because see, सिंपल बात है, आप जब कन्वीनियंट, सी कैसा है, ये सब कन्विंसिंग के ऊपर है. अगर आपके घर पे बाई काम करती है और उसका काम, अगर बाई का काम अच्छा नहीं है, वो अच्छे से यूटेंसिल नहीं धो रही है, तो व्हाट विल यू डू? यू चेंज दैट बाई. The same way, if you are the professional working with you or the advisor working with you is not the up to the mark as per your requirement, आप उसको change कर दो. Simple. There is no emotion in that, ma'am. You should change. No, sir, I totally agree on that. We need to change. But Yes. many times what happens कि we are keep on keeping the change. तो ऐसे कुछ तो वेबसाइट हो जहाँ पे हम good advisor की list या कुछ तो ऐसा मिले, because every time we need to do search, and you know that the Google is providing n number of stuff. Right. Which to pick up? That is another question for us. See, basically, ma'am, इसमें थोड़ा सा ये है, I totally agree with you कि that there is no website, such website कि मैं ऐसा बोलूँ कि this is a truthful advisor and this is a bad advisor. So it comes with the experience. Like you must be having a chartered accountant, right? So many professionals, you must be having a driver also. Okay, तो थोड़ा सा अपने को test and try करना पड़ता है. That is true. But there is no other way out. मतलब इसमें कोई ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ कि ये वेबसाइट पे आप देखो and you will get the most trusted advisor in your locality. So there is no such website right now. So that is the thing. Okay, but I think you should मतलब एक है कि आप अगर एडवाइजर से बात करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं मैडम कि what I feel, मतलब over the years of experience, आपको उसका इन्वेस्टमेंट मांगो पहला. अगर वो आपको एडवाइस कर रहा है ना कुछ, तो उसको पहला बोलो आपने क्या किया है वो मेरे को दिखाओ. आप पहला उसको बताओ कि I have इन्वेस्टमेंट seen his portfolio. I have seen the investment of that. But the where he has invested now, the rate of that particular shares are very high, sir.
ओके ओके, Very high. आई अंडरस्टैंड, बट आपको थोड़ा सा टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे मैम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. Thank you so much, sir. या वेलकम मैम, वेलकम. Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम. There is one more question from Sriya Jaiswal, ma'am. The question is, Yes. what are the benefits of SIP over NPS? Okay, very good question. NPS is a national pension system designed by Government of India. See, national pension system और SIP में ये फर्क है कि NPS का जो बेनिफिट है ओवर एंड अबव 80C आता है, which is 80CCD के अंडर आता है, which is 50,000 एडिशनल. ओके, म्यूचुअल फंड में अगर आप ELSS में भी इन्वेस्ट करोगे तो वो एडिशनल 50,000 का बेनिफिट नहीं है. सो अगर आपको वो 50,000 का एडिशनल बेनिफिट लेना है तो आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ दीज आर द एडवांटेज ऑफ NPS. डिसएडवांटेज ऑफ NPS इज दिस कि NPS जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जिसमें जो स्टिपुलेशन है वो पूरा का पूरा डिजाइन बाय कुछ कंपनीज को काम दिया उसके हिसाब से. तो जो फंड रिटर्न है, जो नॉर्मल SIP अच्छे SIP फंड में आ सकता है, एक्टिव फंड में आ सकता है, उतना बड़ा रिटर्न इसमें नहीं आ सकता क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट स्टिपुलेशंस है. तो बोलने का मतलब कि थोड़ा सा रिटर्न कम हो जाएगा, स्लाइटली आई कैन से 2-3% का रिटर्न कम हो जाएगा. लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है, ओके, 2-3% भी वो फर्क पड़ेगा. दूसरा NPS में ये है कि आप फटाक से विड्रॉ नहीं कर सकते. जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में 5 years इन्वेस्ट किया एंड यू नीड मनी, इमरजेंसी हो गया, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप फटाक से जाके NPS में डायरेक्टली विड्रॉ का बटन नहीं दबा सकते. जैसे म्यूचुअल फंड में कैसा है, आपने बटन दबा दिया तो 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है. तो चाहिए 50 लाख है या 1 CR है म्यूचुअल फंड में, आपका 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा. पर NPS में वैसा नहीं हो सकता. तो NPS में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, देन वो सब पैसा आपका वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पैसा है. और प्रीडोमिनेंटली NPS ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप पैसा ना निकालो, आप 60 के बाद पैसा निकालो. ओके, तो उसको उस तरह से डिजाइन किया है. प्लस 60 के बाद भी पूरा पैसा 100% आपको नहीं मिलेगा. मतलब अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ SIP थ्रू, तो मेरे को 100% पैसा मैं 60 पे निकाल सकता हूँ, उसको जहां पे चाहिए वहां पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ. पर जबकि मेरे को इधर वैसा नहीं है. यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट बोलेगा तुमको 40% क्यूमुलेटिव लेना है कि 60% लेना है, उसका कैलकुलेशन है. मतलब 100% पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा. सो NPS इज गुड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स सेविंग. अगर आपको सिर्फ टैक्स सेविंग का पर्सपेक्टिव है तो आप NPS में पैसा डालिए. पर एक्टिव इनकम है, इमरजेंसी के लिए पैसा निकालना पड़ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 60 के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप SIP में पैसा इन्वेस्ट कीजिए. Thank you so much, sir. Thank you. You're most welcome, ma'am. Anybody else? Thank you so much, sir. I guess we are done with all the questions given in the chat box, but there was one participant, Nandu Hedvilkar. He raised his hand, so I guess he wants to ask something. So if Nandu Hedvilkar is here, he is free to ask this question. Okay. Yeah. So, sir, we are done with the question answer session. If there is any so thank you so much for your answers. Now, if there is any participant who wants to share their views about the 3 days FDP which was conducted at our college, the platform is all yours. If they want to share all your suggestions, all your comments and your thoughts and opinions are welcome on the platform. So if there is someone who wants to share their opinions about the 3-day webinar which was conducted by us, the thoughts are welcome for them. If there is anyone who wants to share their opinions, they are free to do that. Okay. Hello, Tanuja ma'am, Mr. Nandu has raised his hand actually. Yeah, ma'am, I mentioned him, but there was no response from his side, ma'am. Okay. I mentioned that person, but there was no response from his side. Okay, so now over to you, Richa ma'am. The question and answer session is done. Over to you, Richa ma'am. Okay, ma'am. Now I call upon Dr. Nirja Animala to propose vote of thanks. Nirja ma'am. Thank you, Richa ma'am.
Good afternoon to one and all. Myself, Dr. Neerija, Head Department of Mathematics. It's an honor to have been to also thank on the occasion of the Faculty Development Program in our college. With the team of KLE Society Science and Commerce College, express our sincere gratitude to all the delegates for taking time from your busy schedule to attend our 3 days national level faculty development program on systematic investment plan, which was organized by our IQAC Criteria 6 convener, Mrs. Swapnali Kadge, with the collaboration of Training Cell. We highly appreciate your presence for our FDP. You all contributed to a great success of the FDP. The success of webinar was made possible through the generous support of your presence. We are really thankful to you for your acceptance of our invitation and spending your valuable time in enlightening us on today's topic. Now, I would like to say thanks to our KLE Society's Chairman, Dr. Prabhakar Kore, KLE Management. I thank Honorable Principal, Dr. G.D. Giri. I want to extend my generous thanks to the resource person, Mr. Jay Palshetkar, and FDP Convener, Assistant Professor Swapnali Kadge, IQAC Coordinator, Dr. Fatima Sheikh, and Mr. Yogendra Dalvi, and Training Cell Convener. I thank organizing team of FDP. I could not forget thanking Mrs. Megha Jain, Mrs. Rajeshri Salokhe, and Ms. Neha Pandare for their technical support. I thank non-teaching staff for their support. I thank our faculty members for their leading supervision and inspiration at every point of time in college. I thank everyone who has given their support and cooperation. It's not possible to thank everyone for such an appreciating involvement and the willingness they have expressed to finish the task. Now, thank you very much. Now I would like to hand over the session to Dr. Richa ma'am. Over to you, ma'am. Yes, thank you, Neha ma'am. Now our RT team wants a photograph for all participants. So kindly switch on your camera. Neha ma'am. Neha ma'am, are you there? Yes, ma'am, I'm there. I request all the participants to kindly switch on their videos. Just give me a second. I'm just taking a snap of it. Thank you so much, everyone. Thank you for your support and participation. Thank you, Neha ma'am. Now I am requesting all to fill the feedback form given in the chat box. And with the permission of our principal, sir, would end today's session. Can I, sir? Yeah, please. Okay. So thank you so much once again to all, and thank you, Jessel, for your wonderful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. A gentle reminder to all the participants, we are Thank you, sir. Thank you. soon upcoming with the next event. The details will be shared to you on the groups which are being created. So it's a request not to leave the group. The details will be posted soon. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all.